So in the previous class, I have showed you all the steps that how to solve the matrix multiplication problem, where to start and what are the steps to go. So today we'll see the one problem and try to solve it. Okay. So this is the example. So you will have a sequence of matrices and order of each matrices will be given, and then you need to compute the matrix multiplication of all the matrices. Okay. So suppose you have five matrices are given and the sequence is 4, 10, 3, 12, 27. If the question is like question it is giving the sequence, so you need to create the matrices. Okay, so sequence अगर दिया हुआ है तो कैसे create करेंगे हम? We will see the matrix have the first matrix will have the size 4 into 10. Then the second matrix will have the size 10 into 3. The third matrix will have the size 3 into 12, and the next matrix will have the size 12 into 20, and the last matrix will have the size 20 into 7. Okay, so these are the matrices given, and we need to compute from M1 to M5. This is M1, M2, M3, M4 and M5. So you need to compute the matrix multiplication, which will be M1 into M5. Okay, means all the matrix will be multiplied. So we need to compute Mi of j, where I की value कितनी है? It should be I की value it should be greater than or equal to 0. Okay, and j की j's value should be less than or equal to 5, क्योंकि हमें 1 to 5 के बीच में कंप्यूट करना है. ठीक है, so m1 to mj we need to compute, and the order of every matrix is suppose mi is the matrix, so order will be mi minus 1 into, मतलब उसका order कितना होगा? I minus 1 into I होगा. That's why it is 0. Okay. So and we all know that कि हमारा जो भी diagonal होगा, that all values will be 0, जो भी diagonal की values होंगी. Okay, so we have seen this कि the first step to solve the dynamic programming is you have to make some initialization. In the matrix multiplication, this is the initialization step कि you need to make all the diagonal values to 0. Okay. So 1 1 is 0, 2 2 is 0, 3 3 is 0, 4 4 is 0, and 5 5 is 0. Okay, the matrix, this is the whole matrix, but हमें lower diagonal से मतलब नहीं, हमें सिर्फ upper diagonal से मतलब है, और main diagonal 0 होगा. तो main diagonal 0 है तो मतलब M11 0, M22 0, M33 0, M44 0, and M55 is 0. Okay, so now you need to compute. The first step is how to compute. कैसे step बताया था? The first step was you need to compute these values, then these values, then these and this one. Okay, ऐसे बताया था ना, वो arrow लगा हुआ था ना ऐसे. हाँ, so firstly you will compute M12 this one, then M23 this one. This is 2 3 now, and this is 3 4. This is 4 5. Okay, so हम ऐसे compute करेंगे one by one. You need to start from here, then here, then here, and then the goal will be achieved. So we will firstly multiply the M1 into M2. So here P0 and P5 are the positions, and M1 to M5 are the matrices of size Pi to P minus 1. Okay. एक्चुअली ये पी आई माइनस 1 पहले है और पी आई बाद में होगा. ठीक है, करेक्टेड. I minus 1 and it will be pi. So the matrix of size of matrix will be pi minus 1 to p0. Okay, so this is given. The sequence is 4 into 10, 4, 10, 3, 12, 27. So you have made the matrices like this. Okay, तो ये हमने देखा है. Every अगर हमारे पास
you can see there are 6 values. तो अगर 6 values है तो मैट्रिक्स will be 5. मतलब जितने भी values दिए हुए हैं उससे एक कम ही मैट्रिक्स होंगे, number of matrix. Okay, so that's why this will be P0, P1, P2, P3, P4 and P5. So the first matrix का order कितना होगा? P0 into P1. If it is 1, then it will be 0. If it is 2, then it will be 1. Means in this way it will be organized. Okay. So now you have formed the matrices. So now the first thing is we need to do the initialization that we have done. That के diagonal values जो होंगे जो भी वो 0 कर देंगे. उसके बाद हम compute करेंगे. So the first step is you need to compute this value M12. So M12 कैसे compute करेंगे? M12 means M1 into M2. So M2 का ऑर्डर कितना है? M1 का ऑर्डर कितना है? 4 into 10 और M2 का ऑर्डर है 10 into 3. Okay, so you will multiply these two. So M1 into M2. So it will be 4 into 10 into दोनों को हम ऑर्डर लिख देंगे, ठीक है? तो इसका ऑर्डर इतना है, सेकंड M2 का ऑर्डर इतना है. So but when you will multiply, if 10 is in the both of the matrices, then you will take only ones. Okay, so this 10 will be taken only once. Then the M12 will be 4 into 10 into 3. So it will be 120. Okay, so अगर ऐसे ही होता है कि अगर हमारा ऑर्डर दिया हुआ है F1 का अगर P into Q है और M2 का Q into R है, so the cost of M1 into M2 will be PQR. ओके, तो Q रिपीट नहीं होगा, जो भी हमारा कॉमन आएगा ना उसको हम सिर्फ एक बार ही लेते हैं. तो द कॉस्ट विल बी 4 into 10 into 3. So it will be 120. Then you need to compute M23. So M23 will be M2 into M3. So 10 into 3. Then again 3 into 12. ऑर्डर यहाँ पे हमने सब सारी मैट्रिक्स का हमें पता है कि क्या ऑर्डर है. तो यहाँ से जस्ट यू नीड टू कॉपी द वैल्यू देन मल्टीप्लाई. तो ऐसे हम कॉस्ट कंप्यूट करेंगे. So it will be 10 into 3 into 12. So 12 into 3 it will be 36 and 0 360. Okay. Then M3 into M4. So ऐसे हम ये सारा कंप्यूट कर लेंगे. So in that way you have computed this all these values. Okay, M12, M23, M34 and M45. Okay, so you have computed all these values. Now you need to compute M13. अभी तक हमारा consecutive था 1 2 2 3 3 4 4 5. अभी क्या है? अभी तक एक का गैप था, अभी 2 का गैप हो जाएगा. इट विल बी 1 3 2 4 एंड 3 5. ओके, सो इफ यू वांट टू कंप्यूट 1 3, सो देयर इज वन मेथड. अगर M13 कंप्यूट करना है तो मतलब M1 इंटू M2 इंटू M3. ओके, ऐसे कंप्यूट करना है. तो 3 मैट्रिसेस हैं, तो अगर 3 मैट्रिसेस हैं तो हम दो तरह से पैरेंथेसाइज कर सकते हैं. आइदर वी कैन do the bracket like there are these are the two cases by which we can solve this multiplication. So the first way is either you can first multiply M1 and M2 then add the M3, or you can firstly multiply M2 and M3 then you can add the M1. Okay, so there are two ways to multiply these M1 to 3. Okay, so we will see each case, और जिससे भी हमें minimum value आएगी that we will take for the मतलब we will save it, क्योंकि हमें ये बाद में पता करना होगा कि हमें कैसे मिनिमम वैल्यू मिल रही है. ओके, सो वी विल सॉल्व फॉर बोथ केसेस. सो फर्स्टली इट विल बी M12 प्लस M3. तो M3 है अगर, तो हम इसी से कैसे लिख लेंगे M33. तो इट विल बी M12 प्लस M33. और इन दोनों का कॉस्ट कितना होगा? क्योंकि अगर ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका कॉस्ट कितना होगा? सॉरी, ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर होगा 0 into 1. ओके, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 0, देन यू नीड टू टेक द 0, देन दिस वन एंड द लास्ट वन. ओके, तो हमें ये हमेशा याद रखना कि ये कैसे आ रहा है, क्योंकि ये जब कंप्यूट करने में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है. सो यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स है उसको -1 करो, देन टेक दिस वन एंड टेक दिस वन. ओके, so 0 into 2 into 3.
तो इट विल बी P0 इंटू P2 इंटू P3. ओके, सो यहाँ पे हमने ये M12 कंप्यूट किया हुआ है. सो M12 कितना है हमारा? इट इज 120. सो 120 M33 हमारा मतलब डायगोनल वैल्यू, इट विल बी 0. और P0 इंटू P2 इंटू P3, तो हमें ये सारी वैल्यूज पता है. P0 P2 P3 कितना है? तो P0 कितना है? इट इज 4, P2 is 3 and P3 is 12. Okay, so you will multiply all these values and you will get the, when you will add this, you will get the 264. And for the second case, it will be like M11 plus M23. M23 की वैल्यू कितनी हमने कंप्यूट किया है? It is 360. Okay, then you need to write the cost of this whole multiplication. तो cost कितना होगा? It will be 0. देन अभी यहाँ पे जो भी है, मतलब ब्रेसेस में जो भी है उससे भी माइनस करना है और इससे भी माइनस करना है. मीन्स जो भी हमारा पहला मैट्रिक्स है ना, उसका जो भी ऑर्डर होगा उससे -1 कर देना है. तो इट इज 1. सो अभी यहाँ पे क्या होगा? P0 एंड इट इज 2, इट विल बी 1 एंड 3 है तो ये एज इट इज होगा. Okay, so in that way you need to compute. So when you will solve this whole thing, you will get it as 480. So यहाँ पे हमने इनिशियली लिखा हुआ है कि M13 में हम उसे ही कंसिडर करेंगे जो हमारा मिनिमम होगा. So in these two, minimum is 264. ओके, तो 264 हमें कैसे मिल रहा है? हमें इस वाले इक्वेशन से मिल रहा है. तो अगर हम पैरेंथेसाइज कहाँ पे करते हैं? M1 और M2 को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, देन इफ वी आर एडिंग M3, देन वी आर गेटिंग इट लाइक मिनिमम वैल्यूज 264. ओके, so in that way we have computed the M13. एंड यू नीड टू रिमेंबर दैट कि ये मिनिमम वैल्यू हमारी कैसे आई है? अगर हमने पहले M1 और M2 को कंप्यूट किया है, देन उसके बाद हमने उसमें M3 ऐड किया है. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट. और यू कैन राइट हियर कि नो, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर इट. और यू कैन ऑल्सो राइट इट कि दिस इज द मिनिमम केस. Okay, then next thing is you need to compute 2 4. This is computed. Now you need to compute this one, 2 4. So this is a combination which will which will be counted for the output. So then you need to compute the M24. तो M24 मतलब 3 मैट्रिसेस होंगे, 2 3 4. तो 2 3 4 है तो यहाँ पे भी 2 केसेस होंगे. तो फर्स्ट केस विल बी M2 into M3 plus M4. Then second case will be M2 plus M3 into M4. Okay. So you need to compute for both the cases. Then जिनमें दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी that will be the M24. So it will be like minimum of M23 plus M44. अभी यहाँ पे देखो it is 2 ना, so 2 है तो यहाँ से हम -1 कर देंगे, तो it will be 1 3 and 4. So you can see it is 1 3 and 4. So 2 3 हमने कंप्यूट किया है. 2 3 की वैल्यू कितनी आई थी? It is 360. Okay, so you will use that 360 and then 10 into 12 into 20. So it will be 2760. In this case M22 plus M34. So M22 तो हमारा 0 है, M34 हमारा 720 था. So in this case the cost will be, यहाँ पे कितना है? It is 2 ना, तो you need to subtract 1. So it will be 1 into 2, क्योंकि 3 है तो 3 से भी -1 करेंगे. So 1 into 2 into 4. Okay, so P1 into P2 into P4. So when you will solve it, you can see this is the minimum value. So अभी हमें क्या, we can see that कि अगर हम पहले M3 और M4 को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद अगर M2 ऐड करते हैं, then we are getting the minimum value. Okay, so you need to make this as a point कि यहाँ पे हमें मिनिमम कहाँ से मिल रहा है? When we are firstly multiplying M3 and M4, then we are adding M2. Okay, so next step is you need to compute 3 5.
So M35 is equal to M3 into M4 into M5. So यहाँ पे भी we have two cases. The first case is either you will firstly multiply 3 4 and add 5, or add firstly multiply 4 5 and then add M3. Okay, so when you will solve these two, you can see कि हमने जब दोनों सॉल्व किया तो वी आर गेटिंग द मिनिमम वैल्यू दिस वन, विच वी आर गेटिंग लाइक कि अगर हम पहले थ्री एंड फोर को मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी देन वी ऐड द M5. Okay, in this case also you can see it is 3, then you will subtract 1, then it will be 2 4. अब यहाँ से भी 1 subtract किया तो 4 ही होगा, so it will be 2 4 and 5. Okay, in this case it will be 2 3 and 5. Okay, so this is the main यहाँ पे बहुत confusion होता है, so you need to remember this कि how to write this cost. Okay, then the next step will be, so you have computed this one, then you have computed this one. So with the help of this you are computing this. Okay, क्योंकि हमें हर एक स्टेप में हम इसको यूज कर रहे हैं, 3 4 को यूज कर रहे हैं, 4 5 को, तो हमें जो भी नेक्स्ट स्टेप कंप्यूट करना है उसके लिए हमें प्रीवियस स्टेप की हेल्प चाहिए ही चाहिए. ओके, सो अगर सपोज कि अगर ये हम हर एक दिस अगर 1 2 को हम सेव नहीं करते, 2 3 को हम सेव नहीं करते, तो हमें हर स्टेप में इस स्टेप में फिर से हमें कंप्यूट करना पड़ता. अगर ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग के थ्रू हम नहीं सॉल्व करते, अगर ये रिकर्सन के थ्रू हम सॉल्व कर रहे होते, तो वी नीड टू कंप्यूट इट अगेन एंड अगेन. कि अभी हमें यहाँ पे फिर से 2 3 अगर यूज करना था, दिस M13 को कंप्यूट करने में हमने M12 यूज किया, सो अगेन वी नीड टू कंप्यूट द M12. Okay, so because we are saving each value, then it is saving the time. So we have computed these many values. Now we need to compute these 3 values. So firstly we will compute M14, then M25. Okay, समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है तुम लोगों को? ये स्पीड में थोड़ा स्लो करूं? मैम स्पीड स्लो करो. ओके, अभी तक समझ आया जितना भी बताया? यस. ओके, ठीक है, ये मैं थोड़ा स्लो करती हूँ. तो अभी इसके बाद हमें क्या कंप्यूट करना है? वी नीड टू कंप्यूट M14 एंड M25. ओके, सो द फर्स्ट व्हेन यू वांट टू कंप्यूट M14, तो मतलब M1 से M2 M3 M4, सो यू नीड टू मल्टीप्लाई द 4 मैट्रिक्सेस. ओके, तो अगर हमने 4 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, सो वी हैव 3 डिफरेंट केसेस. ओके, तो वो केसेस कैसे हैं? You can see, you can identify by yourself कि you can try to parenthesize in every possible way. Okay, कि हम कैसे कैसे कर सकते हैं. So the first step is either you can multiply firstly the M1 into M2 into M3, then you can add the M4, or you can multiply like M2, M3 and M4, then you can add the M1. और यू कैन मल्टीप्लाई द 2 2 मैट्रिसेस कि पहले हमने M1 M2 को कर लिया, उसके बाद हमने 3 4 को कर लिया, मतलब पहले इन दोनों को कर लिया, फिर इन दोनों को कर लिया, फिर इन दोनों का रिजल्ट होगा, जो इसका भी रिजल्ट एक मैट्रिक्स होगा, इसका रिजल्ट भी एक मैट्रिक्स होगा. ओके, सो देन यू विल मल्टीप्लाई दीज टू. सो उससे क्या होगा? यू आर इट इज द थर्ड वे. सो यू कैन सी देयर इज नो अदर वे कि हमारे पास 3 ही पॉसिबिलिटी हैं अगर हमें 4 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है. So there is no other possible way. Is there any other way? There is no other possible way. Okay, so you need to solve for each possible case. Firstly for this one, this one, this one, और इन तीनों में से जिससे भी हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, that will be the output. Okay, so we will see. So 1 4 कैसे कंप्यूट कर रहे हैं? पहले हम
M1 2 3 को मल्टीप्लाई करें और M4 4 को ऐड कर दें, और 1 2 और 3 दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, 1 2 को अलग से, 3 4 को अलग से, and then or you can multiply 2 3 4 and add the M1. Okay, so these are the all possible cases. So the first case is M13 plus M44. तो इसका कॉस्ट कितना होगा? इट इज 1 ना, यू कैन सी, अगर 1 है तो इट विल बी, द फर्स्ट केस विल बी 0 एंड इट इज 3. तो आइदर यू कैन राइट, यहाँ पे अगर 3 है तो 3 भी लिख सकते हैं, और यू कैन माइनस डू द, यहाँ पे जो भी वैल्यू से हम -1 करेंगे, अगर दिस विल ऑल्सो बी 3. सो ये दोनों का जो भी वैल्यू होगा वो हमेशा सेम ही रहेगा. आइदर यू कैन डायरेक्टली राइट दिस वन और यू कैन डू द माइनस एंड राइट दिस वन. ओके, so it will be 1 3 and 4, sorry 0 3 and 4. So P0 into P3 into P4. So when you Ma'am, will didn't solve, got you. Didn't get this part. okay, okay. Which part? माइनस वाला पार्ट? Yes, ma'am. हाँ, तो देखो अभी हमने क्या किया, अगर हम कोई भी दो मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका एक कॉस्ट होता है. ओके, कि जैसे हमने इनिशियली सॉल्व किया था ना M12 के लिए, अगर ये दो मैट्रिक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो द कॉस्ट विल बी, अगर सपोज दिस इज P एंड दिस इज Q एंड दिस इज Q into R. ओके, तो इधर फर्स्ट मैट्रिक्स का अगर हमारा ऑर्डर है P into Q and if it is Q into R, then the whole cost will be P into Q into R only. Okay, ये Yes, समझा? ma'am. हाँ, तो अभी इसके बाद अगर हमें कंप्यूट करना है, अगर हमें अभी इसका कंप्यूट करना है तो वी हैव टू मैट्रिसेस. ओके, तो अगर हमें इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर कितना होगा? सो अगर यहाँ पे हमारे पास तीन मैट्रिसेस है ना, M1 M2 एंड M3. ओके, M1 3 मतलब M1 इंटू M2 इंटू M3. सो M1 है जो हमारा, उसका ऑर्डर कितना है? M1 का, M1 का ऑर्डर कितना है? M1 का ऑर्डर है M0 इंटू, सॉरी P0 इंटू P1. यू कैन सी M1 का ऑर्डर कितना है? P0 इंटू P1. ओके, सो यहाँ पे 1 है, तो मतलब अगर इसका ऑर्डर हमें देखना है तो इट विल बी 0, की ये 1 से स्टार्ट नहीं होगा. अगर 1 से स्टार्ट किया तो ये विल बी कंफ्यूज कि अगर हमारा ये M1 है तो इसका ऑर्डर P1 इंटू P2 होगा. ऐसे नहीं होगा. अगर ये M1 है तो इसका ऑर्डर P0 इंटू P1 दिया हुआ है. ओके, so if you need to solve it, हाँ, for this one, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सो इस केस में इसका कितना है? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 into 1, then 1 into 2 and 2 into 3. ओके, अगर हमें बेसिकली हम ऐसे ही लें 1 into, क्योंकि हमें अभी ऑर्डर ऐसे अलग अलग किया तो दैट विल बी कंफ्यूजिंग. तो अगर यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है 3 तक जा रहा है, तो अगर 1 से है तो इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0 to 3. हाँ, 0 into 1, 1 into 2, 2 into 3. तो अगर ऐसे है तो अगर हम उनको जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी फर्स्ट वाला है और जो भी लास्ट वाला है वही बचेगा. बीच का जो भी है दैट विल बी ओमिटेड. ओके, बाय डिफॉल्ट. इफ आई कैन शो इट हियर, ओके, तो अगर हमने ऐसे लिखा हुआ है M1 2 M3. ओके, सो इसका क्या मतलब है? M1 इंटू M2 इंटू M3. ओके, सो M1 का ऑर्डर हमारा कितना है? इट इज P0 to P1. ओके, इसका ऑर्डर कितना है?
P1 to P1 into P2, ओके, और इसका ऑर्डर कितना है P2 into P3, ओके, ऐसे है। तो व्हेन इफ यू आर मल्टीप्लाइंग, अगर हम कैसे भी मल्टीप्लाई करें, सपोज अगर हमने M1 और M2 को किया है फर्स्टली, सो व्हाट विल बी द ऑर्डर P0 इंटू P1 एक बार ही आएगा, तो जो भी कॉमन होता है वो एक ही बार आएगा, ठीक है, इट विल बी P1, देन इट विल बी P2, ओके, एंड देन सो अभी इसका कॉस्ट ये होगा, and if you will multiply this with this one, so what cost you will get? You will get it like P0 into P1 into P3, okay, P2 भी रहेगा, एक ही बार रहेगा, सॉरी, into P3, okay, so M3 4, so जब हम ऐसे will be 0 into 3 into 4, so अगर हमें, और फिर अगर हमें सपोज इसको हमें मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास एक और मैट्रिक्स है M4, जिसका ऑर्डर कितना है P3 इंटू P4, मिसिंग समथिंग, सो यहाँ पे क्योंकि ये सिर्फ अगर हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी ओनली P0 इंटू P3 इंटू P4, इसका कॉस्ट कितना होगा, see we will see here कि अगर जब हमने initially firstly we are computing 1 2, okay, this part 1 2, so if when you are computing 1 2, then you will take M1 into M2, so it will be 4 into 10 into 3, okay, so which is basically P0 into P1 into P2, okay. So, and the next, when you are computing M13, so when you are computing M13, so you are writing it like, okay, M13, so we have two options. So either you can do it like this or do it like this. So, okay, so we cannot solve it like this.
क्योंकि यहाँ पे 2 केसेस हो रहे हैं ना, तो हमें अगर 1 1 है तो इट विल बी 0 एंड 3 3 है तो इट विल बी 0, तो यहाँ पे एक ऑमिट हो जा रहा है। और यहाँ पे हम जिस तरीके से कर रहे हैं तो इट कैन नॉट बी ऑमिटेड, सो आई वाज डूइंग इट इन द रॉन्ग वे, सो इट यू कैन नॉट डू इट लाइक दिस, क्योंकि अगर हम जब ऐसे लिखेंगे ना, दिस वन पार्ट विल बी ऑमिटेड बाय इटसेल्फ। ओके, so the cost will be, in this case the cost will be क्योंकि अगर हमें सिर्फ 1 2 के लिए ही लिखना है m1 इंटू m2, सो इट विल बी m1 का कितना है 0 इंटू 1 और m2 का कितना है 1 इंटू 2, तो इट विल बी 0 इंटू 2 और इसका कितना होगा 3, सो इट विल बी 0 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 यहाँ से आ रहा है, 3 यहाँ से आ रहा है और 0 इज कमिंग फ्रॉम 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 इट विल बी 0, एंड इन दिस केस 1 इज 1, यहाँ पे 1 है तो यू नीड टू माइनस दिस थिंग, सो इट विल बी 0, यहाँ पे 2 है तो 2 को 1 से माइनस करो तो इट विल बी 1 एंड देन इट विल बी 3। ओके, क्योंकि अगर हम उस तरीके से करेंगे तो हमारी जो वैल्यूज है वो ऑमिट नहीं होंगी, सो इट विल बी ऑल रॉन्ग। ओके, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू डू इट लाइक दिस वे ओनली। मैम बट यहाँ पे 1 3 को हम लोग ने 1 2 एंड डायरेक्टली 3 3 3 कैसे लिखा, मतलब बीच का पार्ट कहाँ है बीच का पार्ट? बीच का पार्ट कहाँ पे? वही ना, वो कहाँ है, मतलब कौन सा बीच का पार्ट? हाँ 1 2 के बाद में हाँ 1 3 भी आए, 1 3 नहीं, मतलब ये 2 3 कहाँ गया मैम फिर? 2 3 यहाँ पे आएगा ना, देखो दो पॉसिबिलिटी है। अगर हमें m1 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 मैट्रिसेस को, सो कहाँ पे पैरेंथेसाइज कर सकते हैं, आइदर वी कैन पैरेंथेसाइज लाइक हियर एंड और हियर। ओके, सो आइदर यू कैन फर्स्टली मल्टीप्लाई m1 m2, क्योंकि हम दो मैट्रिक्स को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 को एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो हमें दो को ही करना पड़ेगा पहले। ओके, सो अगर हमने पहले इन दोनों को किया उसके बाद m3 को इसमें ऐड किया, दिस इज वन वे, or another way is either you can multiply these two and then you can add m1। okay, ये समझ आया यहाँ पे कैसे पैरेंथेसाइज किया? हाँ मैम, बट ये वाला पॉसिबिलिटी भी हो सकता है ना कि पहले 2 3 को किया और फिर m1 को मल्टीप्लाई किया। हाँ, तो ये है ना सेकेंड वाला, 2 3 को पहले किया फिर m1 को मल्टीप्लाई किया, ऐड किया मल्टीप्लाई किया, सेम ही है। तो यहाँ पे पहले हम 2 3 को ही कर रहे हैं ना, तो अगर हमने 2 3 को पहले किया तो इट विल बी m2 3। ओके, और m1 क्या होगा, m11 ही हो जाएगा, क्योंकि अगर m1 है तो इट विल बी डायगोनल पार्ट में आ जाएगा। हाँ, सो m2 अगर पहले 2 3 किया तो दिस इज द कंडीशन ना, सेकेंड वाला केस उसी के लिए तो है कि m23 एंड प्लस m11। फर्स्ट केस में कैसे कर रहे हैं हम, m12 प्लस m33। ओके मैम। हाँ, तो दोनों केस हम कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों केस में अगर लिया कि दोनों पॉसिबिलिटी ली और जिससे भी हमें मिनिमम रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी कंसीडर्ड। ओके, सो इन दिस केस वी आर गेटिंग मिनिमम फॉर दिस पैरेंथेसाइजेशन, कि अगर हमने ऐसे पैरेंथेसाइज किया तो हमें मिनिमम मिल रहा है। यू कैन सी इट इज 264 एंड दिस इज 840। ओके, सो यू विल कंसीडर दिस वन। सो ऐसे ही हम सबके लिए करेंगे। So we are computing for m13, we are computing for m14 ना। So यहाँ पे हम कर रहे थे, so you need to multiply 4 matrices and these are the all possibilities। Okay, either you can multiply these 3 first or you can multiply these 3 first or you can multiply these 2 and these 2। ओके, अभी हम 3 को क्यों बोल रहे हैं, पहले मैंने बोला कि हम सिर्फ 2 ही कर सकते हैं, मैं बोले 3 कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने ये कंप्यूट कर लिया है। प्रीवियस स्टेप में हमने कंप्यूट कर लिया कि अगर 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट होगा, तो वी हैव ऑलरेडी मल्टीप्लाइड द 3 मैट्रिसेस बाय ब्रेकिंग देम इनटू 2 2। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आइदर यू कैन मल्टीप्लाई देम लाइक 3 3 और यू कैन मल्टीप्लाई देम लाइक अ 2 सेट ऑफ 2 2। So either you can multiply m1 m2 और m3 m4, पर सीक्वेंस सेम रहना चाहिए। तो ऐसे नहीं कर सकते कि हम m1 और m3 को कर दें और m2 और m4 को कर दें, तो जो भी सीक्वेंस है वो सेम रहना चाहिए, m1 2 3 4 ऐसे ही आना चाहिए। ठीक है, so these are the 3 possibilities। So first is this one m13 plus m44, कि मतलब हमने पहले फर्स्ट 3 को मल्टीप्लाई किया है, देन उसमें फोर्थ वाला ऐड किया है।
सेकेंड क्या है, M12 प्लस M34, मतलब हमने दो दो को लिया है. सो इट इज M12 एंड M34, तो हमने दो दो को लिया हुआ है. एंड थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, 11 एंड 24. तो फर्स्टली हमने 2 to 4 के सारा मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हमने M1 को ऐड किया. सो दिस इज द थर्ड पॉसिबिलिटी कि 2 to 4 पहले मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके बाद हमने M1 ऐड कर दिया है. ठीक है. सो नाउ यू विल सॉल्व फॉर ईच पॉसिबल केस. ओके, तो M13 प्लस M44, सो इट विल बी 1 है तो यहाँ पे 0 आएगा, देन दिस इज 3 एंड दिस इज 4, and 0, 2 and 4, 0, 1 and 4. Okay. मैम हाँ, ये नहीं समझ रहा है, यम 4 कैसे आया, यम 1,3? 1,3, ये 4 कैसे आया? यस. सो यहाँ पे देखो, पहला केस क्या है कि हमने पहले 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद हमने 4th मैट्रिक्स ऐड कर दी है. ठीक है. तो अगर वो सिंगल मैट्रिक्स है तो इट विल बी M44 ओनली. अगर सिर्फ जैसे हमने प्रीवियसली भी हम ऐसे ही करते आ रहे थे कि जब भी हमारा सिर्फ जैसे M5 था यहाँ पे, तो वी हैव रिटन लाइक M55, M3 है तो M33. ओके, सो अगर यहाँ पे M4 है तो इट विल बी M44, क्योंकि हमने 1 2 3 की सारी पॉसिबिलिटीज ले ली है, तो अभी हमारे पास सिर्फ 4th मैट्रिक्स ही बची हुई है, तो सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट लाइक M44. ओके मैम, समझा. हाँ ठीक है, 1 2 3 ले लिया, 3 के बाद 4 ही तो आता है, तो उसके बाद 4 4 हो गया. 1 2 2 ले लिया तो 2 के बाद 3 आता है, तो 3 4 हो गया. अगर 1 1 है तो 1 के बाद 2, देन 2 2 4 हो गया. तो कोई भी पार्ट स्किप नहीं हो रहा है, सारा हम कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है. ओके ओके. और ये सॉल्व कैसे करना है, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है. So you will solve this and you can see the minimum value you are getting from the first one. कि अगर हम 1 2 3 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और फिर अगर हम फोर्थ वाला मैट्रिक्स ऐड करते हैं, तो you can see, oh no, this one you are getting the minimum from 1080 from the 2 2. कि अगर हमने दो दो में ब्रेक कर लिया चार मैट्रिक्स को, तो in this case we are getting the minimum output. So 1 to M1 into M2 into M3 into M4. Okay, so this is the parenthesization कि अगर हमने ऐसे किया हुआ है, then we are getting the minimum output for M14. Okay, so next we will compute for 2 5. So 2 5 मतलब M2 into M3, मतलब 2 से 5 के बीच में जितने भी मैट्रिसेस आ रहे हैं, we will consider all these 2 3 4 5. So इनको भी मल्टीप्लाई करने के we have 3 cases. So either you can firstly multiply the first 3 and then you can add the last one, or you can multiply firstly the last 3 and then add the first one, or you can multiply them in a group of 2 2. Either you can firstly multiply M2 and M3, then M4 and M5. Okay, so these are 3 possible cases. So we will see in detail there कि अगर हम 2 5 को कंप्यूट कर रहे हैं तो फर्स्ट इज 2 to 4, तो we will write it as like M2 to 4 plus M55. Okay, and यहाँ पे it is 2, तो it will be 1 4 and 5. यहाँ से जो भी है इसको माइनस कर देना है, ये वैल्यू ले लेनी है एंड द लास्ट वैल्यू लेनी है. ओके, सो इट विल बी 1 4 and 5, 1 3 5, 1 2 5. Okay, you can see. Okay, and the second case was M2 plus M3 comma 5, M2 2 plus M3 comma 5, and the third case was M23 plus M45. मैंने
Okay, so these are all the cases. So you can see you are getting the minimum value which is 1350 from there. ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, M22 प्लस M35. M22 मतलब अगर हमने एक मैट्रिक्स को अलग रखा हुआ है एंड देन वी हैव मल्टीप्लाइड द M3 इंटू M4 इंटू M5. ओके, सो अगर हमने M3 M4 और M5 को एक साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने उसमें M2 ऐड किया है, देन वी आर गेटिंग द मिनिमम विच इज द 1350. Okay, so we have computed 1, 4 and 2, 5 also. 1, 4 and 2, 5. So you can see we have computed all the possible values. Now we need to compute the last part, which is the goal. Okay, so now we will compute M15. So M15 मतलब अभी हमारे जितने भी मैट्रिसेस that will be multiplied. So M1 into M2 into M3 into M4 into M5. तो अगर 4 मैट्रिसेस हैं तो we have 4 different cases to multiply them. So the first case is या तो पहले हम फर्स्ट 4 को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद 5वां ऐड कर दें, या हम लास्ट 4 को मल्टीप्लाई करें और फर्स्ट वन ऐड कर दें, और वी कैन डू इट लाइक कि पहले हम इन तीनों को करें और देन इन दोनों को, और फर्स्टली इन दोनों को करें एंड देन इन तीनों को. ओके, यू कैन सी. सो दीज आर ऑल द पॉसिबल केसेस. इफ यू कैन थिंक ऑफ एनी अदर केस देन यू कैन से. Is there any other possible case? You can see these are 5 matrices we have and we need to multiply them. तो हम और किसी तरीके से पैरेंथेसाइज कर सकते हैं क्या? Nobody is replying. Okay, so we will see each case, और जिससे भी हमें मिनिमम मिलेगा that will be the answer. Okay, so the first case will be M124 plus M5. So M124 plus M5. And second case is M11 plus M225. So M11 plus M225. Third is M13 plus M45. So M13 plus M45. Last case is M12 plus M35. So M12 plus M35. Okay. So and the cost will be, इसके केस में क्या होगा, 1 है तो it will be 0, 045, 035, 025, 0, अभी यहाँ पे भी E1 है तो it will be 015. Okay, so these are 4 different cases. Now you need to solve each of them, और जिससे भी हमें मिनिमम मिलेगा that will be the answer. Okay, ये समझ आया ये M15 से कंप्लीट करने के लिए? हाँ, सो अभी ये सबको सॉल्व करो, उसके बाद मिनिमम जिससे भी मिलेगा दैट विल बी द आंसर. सो यू कैन सी यू आर गेटिंग द मिनिमम वैल्यू फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन विच इज द 1344. तो कॉम्बिनेशन कितना है, अगर हमने पहले 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है M12 को, और उसके बाद हमने 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया M3, 4 एंड 5 को. ओके, सो दिस इज द कॉम्बिनेशन. सो M1 into M2 then M3 into M4 into M5. Okay, this is the combination and our final output is 1344. Okay, so 1344 is the answer, but हमें पता है कि हमारा ये आंसर है, बट हमें नहीं पता कि हम कैसे आया है. तो we need to see कि 1344 हमें कैसे मिला, कौन से कॉम्बिनेशन से मिला. We are getting it from M1 into M2 and then this parenthesize. मतलब पहले हमें यहाँ पे parenthesize करना है, उसके बाद हमें यहाँ पे करना है. ओके,
M3, M4, M5. So now we need to see कि M35 में हमने कहाँ पे पैरेंथेसाइज किया था, मतलब हमें M35 की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिली थी. ओके, सो M35, M25 1435. So you can see minimum you are getting from which combination? You are getting 1140. तो combination क्या है हमारा? 3 4 and 5 5. ये combination. ओके, सो ये कॉम्बिनेशन है. तो अभी कैसे पैरेंथेसाइज करना है हमें? वी हैव गॉट द फाइनल आउटपुट कि पहले 1 2 को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सॉरी हाँ, तो पहले हमें इफ यू नीड टू मल्टीप्लाई द 5 मैट्रिसेस M1 to M5, so you have gotten the output this output from this combination. ओके, M12, क्योंकि हमें ये पता करना था कि हम कहाँ पे पैरेंथेसाइज करें कि हमें मिनिमम आउटपुट मिले. याद है, हमारा गोल ये नहीं था कि हमें मिनिमम वैल्यू कंप्यूट करनी है. द गोल वाज कि हाउ टू पैरेंथेसाइज कि हमारा कॉस्ट कम हो, जो भी हमारा कंप्यूटेशन का कॉस्ट है वो कम हो. ओके, सो अभी हमने कंप्यूट तो कर लिया है. नाउ वी विल सी कि हमने कैसे मतलब हमें मिनिमम वैल्यू कैसे मिल रही है. M4 and M5. ओके, सो इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है. बट इस केस में अभी हमें कहाँ पे पैरेंथेसाइज करना है? सो यू नीड टू M1 M2 and then you need to parenthesize 3 5 की मिनिमम वैल्यू मिली थी हमें यहाँ से, this 3 4 and 5 5. So firstly you need to multiply M3 and M4 and then multiply the M5. Okay, so this is the parenthesization that we need to get the optimal cost and also which will take the very less computation. Okay, तो पहले हमें M2 M3 को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसमें हमें M5 ऐड करना है. सो अभी जो भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया उनका रिजल्ट कितना, वो मैट्रिक्स ही होगा. ओके, एंड दिस इज वन मैट्रिक्स. then when you will multiply these two, then you will get the one matrix. Okay, उनको multiply करने के बाद भी you will get one matrix. Solution will be also one matrix only. Okay, so in that way you need to parenthesize for this example. Understood? Yes, ma'am. Got it. Yes, ma'am. Okay, so now we have one more question. तो तुम लोग सॉल्व करो. चलो, अभी जहाँ पे प्रॉब्लम होगा I will guide you. The first question is this one and second question is this one. So firstly solve this one, first question. पहले तो मैट्रिसेस बनाओ कि कैसे कैसे बनाने हैं. Okay, so these are, we have 4 matrices, ऑर्डर दिया हुआ है. तो कैसे होगा? A1 का ऑर्डर क्या होगा? P0 P1. हाँ, तो इट विल बी 10 into 100. A2 का कितना होगा? 100 into 20. A3 का 20 into 5.
हाँ, A4 का 5 into 80. Okay. सो ऐसे अभी सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर मिल गया है. देन यू नीड टू फर्स्टली फॉर्म दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स. दिस मैट्रिक्स डायगोनल वैल्यूज 0 है. देन कंप्यूट 1 2 2 3 3 4 4 5. Okay, we start doing it. Note down the question. The first question. मैम एक बार क्वेश्चन वापस से प्रेजेंट करो. क्या? एक बार वो क्वेश्चन वापस से प्रेजेंट करो ना. ओके ओके, सॉरी. मैम या डन विद द क्वेश्चन. हाँ, क्या? किसी ने कहा कुछ? नहीं नहीं मैम, बस क्वेश्चन लिख लिया है सब. ओके ओके, ठीक है. अभी सॉल्व करो, एक एक करके कंप्यूट करो. 1 3, देन 2 1 2 2 2 3 3 4 4 5. 4 5 तो इसमें नहीं होगा क्योंकि हमारे पास 4 ही मैट्रिसेस है ना. सो 3 4 तक ही कंप्यूट करना है.
हो रहा है सबसे? एक एक सॉल्व करके बताओ, मैं बताऊंगी कि करेक्ट है या फिर, क्योंकि अगर फर्स्ट स्टेप में ही गलत कंप्यूट किया तो फिर पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा ना। कंप्यूट होने के बाद बताना कि कितना आ रहा है। आई विल बी बैक इन 2 minutes. मैम M1 to 60 आया। M12 कंप्यूट हुआ? मैम 60। 60? हाउ इट कुड बी 60? 12 का कितना होगा? अगर हम M12 को कंप्यूट करना मतलब P0 इंटू P1 इंटू P2, so 10 इंटू 100 इंटू 20, हाउ इट कुड बी 60? सॉरी सॉरी मैम, मैंने कुछ गलत मतलब मैंने नीचे वाले P0 P1 की वैल्यू डाल दी। 20,000। हाँ मैम 20,000 हाँ, अभी। हाँ 20,000। नेक्स्ट 2 3 कितना है? 1,000। 2 3 2 3 मतलब P1 इंटू P2 इंटू P3। 1000 कैसे होगा? 10,000। 10,000 होगा ना? 10,000। हाँ। 3 4 3 4 कितना होगा? 8,000। हाँ, 8,000। आगे कंप्यूट किया किसी ने?
13 और 24 कंप्यूट करते टाइम देखना कि मिनिमम वैल्यू कहाँ से आ रही है, मतलब कौन से पैरेंथराइजेशन से आ रही है। M13 इज कंप्यूटेड। किसी का कंप्यूट हुआ है M13? दो पॉसिबल वेज हैं, either you can first compute first multiply M1 into M1 into M2, then add the M3, or you can first multiply the M2 into M3, then add the M1. मैम M1 M3 के लिए मतलब M1 3 के लिए एक वैल्यू 22,000 है क्या? 22 नहीं है। 22 कैसे होगा? M12 इन सॉरी हाँ M12 प्लस M33 करेंगे तो M12 की वैल्यू कितनी कंप्यूट की है? 20,000 ना। तो हाँ 20 हाँ 20,000 प्लस P0 इंटू P2 इंटू P3। ओके मैम तो P0 कैसे आएगा उसमें? P2 M3 के लिए P2 एंड P3 आएगा ना। अगर M12 लिया है तो M12 का कितना होगा? 1 है तो 0 से स्टार्ट होगा ना। बट मैम M12 की वैल्यू 20,000 ऑलरेडी है ना हमारे पास। हाँ हाँ M1 की वैल्यू 20,000 है, पर उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा ना हमें लास्ट में, जैसे हम ये लिखते हैं ना लास्ट वाला स्टेप, ये कहाँ गया ये हाँ वाला, तो मैम ये जैसे कॉस्ट। हाँ हाँ ये क्या लिखा है? अच्छा हाँ हाँ P0 P1 P2। हाँ हाँ P0 P1 नहीं, P0 P2 इंटू P3। दो पॉसिबल केसेस हैं, एक का हाँ हाँ हाँ। P013 और 023। हम्म मैम M11 के लिए पोजीशन P0 आएगा ना? हाँ एम जो भी 11 22 33 है वो सारे जीरो होते हैं ना, कि हमने इनिशियली डायगोनल सारी वैल्यू जीरो कर देते हैं ना हम लोग। हाँ सो हाँ M11 विल बी जीरो। ओके। हाँ ऐसे तो M33 भी 0 होगा इसके लिए, फिर मतलब 5 ऐड होगा ना, मतलब नहीं क्या 10 हो ऐड होगा। क्या टू होगा क्या? 20,000 एंड 10 मैम। 20,000 10 ही होगा ना ऐड, तो फिर एक अगर M33 के कैसे लिए। ऐड होगा? सी अगर हमने कौन सा केस बता रही हो? पहले क्या M1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 हो रहा है या 2 3 हो रहा है? 1 2 हाँ अगर 1 2 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या क्या कॉस्ट होगा? 1 2 का कितना होगा? 0 इंटू 2। और हमें M12 प्लस M33 ना, ऐसे लिखेंगे। हाँ मैम। हाँ, और कॉस्ट कितना होगा? 0 2 3। हाँ हाँ तो 0 2 3 मतलब
10 into 20 into सॉरी कहाँ गएगा, हाँ 10 into 20 into 5, कैसे हो रहा है यहाँ पे ये कि कैसे कैसे सॉल्व कर रहे हो तुम लोग? ये एक एक्स्ट्रा लिखा है क्या मैंने? हाँ ना, अगर 0 से है तो 4 तक ही रहेगा ना, P5 नहीं रहेगा ना। हाँ हाँ, तो क्या होगा 0 into 2 into 3 ना, so 0 into 2 मतलब it will be 200, 200 will be multiplied to 5, so it will be 200 will multiply to 1000 होगा ना। यस मैम, हाँ हाँ 1000। तो 21,000 होगा, 100 या 10 नहीं होगा, वो 1000 होगा पूरा। बट मैम फिर M33 के लिए P0 की वैल्यू भी ऐड करेंगे ना? हाँ हाँ, तो 3 होगा ना, रुको रुको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। M13 में कंफ्यूजन हो रहा है ना? मैम 1000। 1000 कि 12,000 क्या? इसके लिए 1000 हाँ 1000 क्या है? ये M1,2 प्लस M3,3 हाँ प्लस प्लस आगे P का करके भी हम मल्टीप्लाई करते हैं ना। P0 हाँ P2 हाँ P3 हाँ इक्वल टू 10 into 20 into 5 हाँ, इक्वल टू 1000। और 1 2 की वैल्यू भी तो लिखनी पड़ेगी ना। सॉरी मैम। M12 वैल्यू कंप्यूट की थी ना पिछले स्टेप में, 25,000। 20,000 जो कंप्यूट किया था। ओके मैम। हाँ तो उसको ऐड करो, मैं यहाँ पे करके बताती हूँ। अगर हमने M13 को करना है तो वी हैव 2 पॉसिबल केसेस, तो हमें इनका मिनिमम लेना है। आंसर आया है मैम, हाँ A13 का आंसर आया हाँ है। हाँ, मैं करती हूँ 15,000। रुको। तो इट विल बी, फर्स्ट केस क्या होगा, पहले या तो हम 1 2 को मल्टीप्लाई करें और फिर 3 को मल्टीप्लाई करें, मतलब ऐड कर दें। इट विल बी M33, ओके। और इसका कॉस्ट क्या होगा, P0 P2 P3, ओके। और दूसरा केस क्या है कि हम पहले 2 3 को मल्टीप्लाई करें और बाद में उसमें हम M1 ऐड कर दें, ठीक है। 2 3, so इस केस में कॉस्ट कितना होगा, P0 P1 एंड अगेन P3, ओके। अभी इन दोनों को कंप्यूट करना है और जो भी मिनिमम हो दैट विल बी द आंसर। M12 हमने कितना कंप्यूट किया, 20,000, ओके। प्लस M33 कितना होगा, 0, और दिस वन कितना होगा, क्या है वैल्यूज बताओ। 1000. 1000 मैम। 10 इंटू, फिर भी मैं लिख देती हूँ अलग अलग ही, 10 इंटू 20 इंटू 5 ना, हाँ इंटू 5। फिर इसका क्या होगा, ये 0 होगा। M23 कितना कंप्यूट किया, M23 कितना 10,000. 10,000. 10,000 कंप्यूट किया। M23, हाँ, so it will be 10,000 plus P0 is 10, P1 is 100, P3 is 5, okay. So when you will solve this, you will get 20,000. This is 1,000 na, 1,000, and this is 10,000 plus
5,000. 5,000 ना. 5,000. So now the answer will be, you have 21,000 and 15,000. Okay, so this is the minimum. The answer will be 15,000. 15,000 हमें कहाँ से मिल रहा है, कौन से पैरेंथेसिस से मिल रहा है, कि अगर हम ये वाला लेते हैं कि हम पहले 2 3 को मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उसमें m1 ऐड करते हैं, देन वी आर गेटिंग द मिनिमम 1 3 वैल्यू. ओके, अभी 2 4 कंप्यूट करो सब. चलो टाइम भी हो रहा है सबका, फिर लेट हो रहा है ना. जल्दी से 2 4 कंप्यूट करो. हेलो मैम. हेलो मैम. Prateek Kulkarni, Yes मैम. you have raised a hand. Have you computed the 2 4? Okay, so what is the answer? दोनों केसेस का बताओ. आंसर बताओ कि अगर हमने पहले 2 3 को कंप्यूट 2 3 मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 4 ऐड किया, तो क्या आंसर है. पहले 3 4 मल्टीप्लाई किया, उसके बाद m2 ऐड किया, तो उसका क्या आंसर है. दोनों में मिनिमम क्या है. ओके, 50,000 48,000. 50,000. ओके, 48,000 कैसे है. कॉस्ट कितना है. दिस C22 is 0 and M34 is 8,000 ना. तो उसका कॉस्ट कैसे कंप्यूट किया है, क्या लिखा है. P क्योंकि दिस M22 प्लस M34 के लिए अगर कंप्यूट कर रहे हैं, सो द ऑर्डर विल बी P1 इंटू P2 इंटू P4. सो अगर हमने 1 इंटू 2 इंटू 4 किया, सो इट विल बी 2,000 into 80, which will be 2,000 into 80, 1,60,000.
124, हाँ तो 124 का कितना 40,000 कैसे हो रहा है? 100 इंटू 20 इंटू 80, 5 कहाँ से आ गया? 5 P3 है। अभी प्रॉपरली कंप्लीट करो। मैम आज जो आपने एग्जाम्पल सॉल्व किया था वो आप क्लासरूम में डाल देंगे क्या? तो हम लोग को रेफरेंस के लिए अच्छा हो जाएगा, हम ये वाला नेक्स्ट टाइम सॉल्व करके बताते हैं। चाहिए तो पूरा हो गया ना बस, क्या 2 4 कंप्यूट करना है, उसके बाद 1 4 कंप्यूट करना है, हो गया। 2 4 नहीं हुआ? टू फोर को देखो, केस 1 का 50,000, एक का 50,000 आएगा, एक का आएगा 1,68,000। उन दोनों में मिनिमम 50,000 होगा। देन यू नीड टू कंप्यूट 1 4। क्लासरूम में अपलोड नहीं करती हूँ मैं, यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ कल, ठीक है? सारे वीडियोस जितने भी अभी तक अपलोड नहीं किए हैं। और ये वाला पीपीटी मैंने गूगल क्लासरूम में डाल दिया हुआ है, ये देखो। इसी में अपडेट किया तो नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वो जो पुराना वाला था उसमें मैंने एडिट करके ये डाल दिया डायनेमिक प्रोग्रामिंग के नाम से, ठीक है? तो you guys can go through it। 1,60,000, अभी 8,000 भी ऐड करो ना 3 4 का, ये तो सिर्फ इसका कॉस्ट हो गया, P1 इंटू P2 इंटू P4 का। अभी ऐसे मत कंप्यूट करो, ऐसे हड़बड़ी में नहीं, आराम से करो, क्योंकि ऐसे फिर एक एक स्टेप छूट रहा है ना। तो अभी M3 सॉरी, हाँ M34 प्लस M22 प्लस जो भी उसका कॉस्ट है 1,70,000 कैसे हुआ? हाँ आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं। 1,60,000 तो बस बस हो गया। 1,60,000 तो ये वाला कॉस्ट हो गया, और उसके बाद हमें इसमें 8,000 और ऐड करना है M34 का, क्योंकि M22 तो 0 होगा। तो इसमें अगर 8,000 ऐड किया तो इट विल बी, हाँ एमसीक्यू में भी आ सकता है, पूछ सकते हैं कि प्रॉपर पैरेंथेसिस कहाँ पे है, कैसे कैसे करने से ये आंसर आया है। सो यू नीड टू सॉल्व इट, और फिर ही पता चलेगा कि कैसे हुआ है ना। सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, केस 1 का आंसर है, केस 1 इज 50,000, केस 2 इज 1,60,000। जीरो ज्यादा लगा दिया क्या मैंने? हाँ 1,60,000, तो इन दोनों में मिनिमम होगा हाँ, तो मिनिमम विल बी 50,000। ओके, अभी जब 1 4 कंप्यूट करेंगे तो वी विल हैव 3 केसेस। तो 3 केसेस में मैं वैल्यूज बता देती हूँ, फिर तुम लोग खुद से कर लेना, ताकि क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा ना फिर कि सही है कि नहीं है। तो 3 केसेस होंगे उसके। तो फर्स्ट केस की वैल्यू होगी केस 1 8 13 0 1,30,000 case 1, case 2 will be
This 2 will be 44,000. Case 3 will be 19,000. ठीक है, so इन तीनों में मिनिमम क्या है? 19,000 है, तो द आंसर विल बी 19,000. ये नोट डाउन कर लो, खुद से सॉल्व करना तो क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा कि सही है कि नहीं है, और फिर कल ये बताना कि ये मिनिमम वैल्यू हमें कैसे पैरेंथेसाइज करना है तो हमें ये मिल रही है. मीन्स जब कंप्यूट कर लेंगे उसके बाद पता चलेगा ना कि कौन से पैरेंथेसाइजेशन पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही है. ओके, तो अगर हमने लिखा है कि M1 to 4 तो हमें कहाँ कहाँ पे पैरेंथेसिस लगाना है. ठीक है, ठीक है ना, नोट कर लिया सबने ये? यस मैम. ठीक है, तो सब सॉल्व करना. और ये लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये भी मैंने पीपीटी में डाला हुआ है, यहाँ पे शेयर किया है ना जो मैंने, इसमें लास्ट पीपीटी में ये क्वेश्चन है, तो ये भी सॉल्व करना. वी विल सी टुमारो कि आंसर इज करेक्ट और नॉट. ठीक है, सो वी ओके, ठीक है.